عزت بخشنے کے لیے آنے والے سیاسی کارکنان، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے ایمانداری سے میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی اور میرے بیٹے یہ بات بتائیں کہ کیا جو افطار ہمیں سرو کیا گیا تھا تقریباً وہی افطار آپ کو بھی سرو کیا گیا، یا آپ نے اب تک روزہ نہیں کھولا؟ کتنی اچھی باتیں کی ہیں وسیم حسین بھائی نے، عبد الوسیم بھائی، شریف بھائی اور ظفر بھائی نے، لیکن آپ کی تعلیموں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یا تو ہم کسی تعزیے کی اجلاس میں بیٹھے ہیں، یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے روزہ ہی نہیں کھولا۔ تو مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ روزہ کھولا ہے یا نہیں کھولا؟ اب لگ رہا ہے کہ روزہ بھی کھولا ہے، یہ تعزیے کی اجلاس بھی نہیں ہے، اور یہ حیدرآباد والوں کا افطار ہے۔ اب یہ معلوم ہو رہا ہے بھائی، اب تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ جتنے لوگ یہاں تقریریں کر رہے ہیں سارے روزے دار اور مہمان اور تحریری ساتھی احتجاج کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ نے افطار کو کیا، اور افطار ڈنر کی ہوئی تھی تو ڈنر کہاں پر ہے؟ میرے خیال میں اس لیے تعلیموں میں تھوڑی کمی ہے یا نہیں؟ ڈنر بھی سر ہو جائے گا، لیکن کچھ کام کی باتیں ہم کر لیں۔ آج ہم کچھ فیصلہ کر لیں۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ افطار نہیں، بہت درست کہا، یہ افطار نہیں، یہ رفتار ہے۔ حیدرآباد کا افطار ہماری تحریک کی رفتار کو بڑھانے کے لیے یہ افطار ہوتا ہے۔ یہ افطار نہیں، یہ حیدرآباد کے عوام کا پیار ہے جو یہاں پر تحریک کے ساتھ اپنی تمام وفاؤں کے ساتھ اپنی ساری وابستگی کے ساتھ یہ حیدرآباد کا پیار تحریک کے ساتھ یہاں پر رہا ہوا، یہ حیدرآباد ہے۔ میں آج آتے ہوئے یہ کمپیئر کر رہا تھا، یہ مقابلہ کر رہا تھا کہ کراچی میں بھی بہت سے افطار میں نے اٹینڈ کیے، کئی ٹاؤن میں جا کر میں نے افطار اٹینڈ کیے، اور واضح رہے کراچی کا ایک ٹاؤن آبادی کے لحاظ سے، کراچی کا ایک ٹاؤن ووٹرز کے لحاظ سے، تحریکی ساتھیوں کے لحاظ سے حیدرآباد کے ساتھیوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ لیکن آج کے افطار میں جس طرح میں لوگوں کو دل سے شریک ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس طرح اپنے تاجر بھائیوں کو، صنعت کاروں کو، کاروباری دوستوں کو، میڈیا کے بھائیوں کو، دانشوروں کو، دیگر سیاسی تنظیموں کی اب تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی افطار میں اتنی شرکت نہیں ہوئی جتنی الحمدللہ آج ایم کیو پاکستان ضلع حیدرآباد کے افطار میں اتنی تنظیمیں شریک ہیں، کئی اور بھی تنظیمیں شریک نہیں ہیں۔ تو میں تمام تحریکی ساتھی وقت کمیٹی، اندرون تنظیمی کمیٹی اور ضلع حیدرآباد کے تمام تحریکی ساتھی، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، بیٹے، میں تمام کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ آج آپ نے جو یہاں رونق سجائی ہے، آپ نے یہاں جو رونق سجائی ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی وقت انشاءاللہ تعالی واپس آ رہا ہے جب ہم سب یکجا تھے، جب ہم سب متحد تھے، پھر وہی متحدہ، پھر وہی متحد، منظم اور متحرک اینڈ ٹو اینڈ کو قائم کرنے کا وقت آ گیا۔ ایک صحیح معنوں میں مڈل کلاس، پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے پاکستانی جو کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہروں میں
को मिलाकर एक डिसिप्लिन, एक मुनज़्ज़म, एक मुतहर्रिक और एक मुत्तहिद तहरीक कायम करने का आ गया है। याद रखें, ये अप्रैल का महीना शुरू हुआ, लेकिन ये रमजान का महीना था जब पाकिस्तान कायम हुआ था। और आज भी एक रात है, बड़ी रात है, और किसी ऐसी ही बड़ी रात में ये पाकिस्तान कायम हुआ था। और इसी बड़ी रात में इस पाकिस्तान को कायम करने के लिए मेरे आबा और अजदाद ने 20 लाख जानों का नजराना दिया था। मेरा आबा और अजदाद मेरे काफिले लूटे थे, काफिले लगे थे, खेलें लूटी थी, मेरी बहनों, मेरी बेटियों की असमतें कुर्बान हुई थी, तब ये पाकिस्तान कायम हुआ था। और इसका पहला मईशत का कदमदान खान लियाकत अली खान ने संभाला था। तब पर्चियों पर दफ्तरों का नज़्म शुरू हुआ था, तब स्टेट बैंक भी पूरी तरह से कायम नहीं हुआ था। और फिर इन शहरों में जन्म शुरू किया, वो वक्त था जब कराची पाकिस्तान का अव्वल नंबर का, पहले नंबर का शहर था, और हैदराबाद पाकिस्तान का तीसरे या चौथे नंबर का शहर था। कराची लाहौर के बाद हैदराबाद का जिक्र होता था। पेशावर कोयटा भी किसी गिनती में नहीं थे, ये शहर वो शहर था। आज जब रफ्तार की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं, तो फिर ये फैसला भी करते हैं हर जवान बोलने वाले मेरे कहने की साथी, मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ रखते हैं कि आए कराची हैदराबाद को वही जो इनका किरदार है कौमी तरक्की तामीर में, हम कराची हैदराबाद को उसकी अजमतें लौटाएंगे। यहाँ के लोगों को सर उठाकर चलने का मौका देंगे, यहाँ के लोगों को सर उठाकर जीने का मौका देंगे। अगर हम मुतहर्रिक होते हैं, खुदा की कसम, ये पानी का मसला, बिजली का मसला, ये आवामी मसाइल, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गैर-आईनी कोटा सिस्टम, ये हल्का बंदियों में धांधली, ये बलियाती इख्तियारात और वसाइल जो हमें नहीं दिए गए, हर तरह की नाइंसाफी और जुल्म हमारे साथ हुआ। और अब पानी, बिजली नहीं, गैस का बहरान भी सर चढ़ कर हमारे सामने मुंह छिपाकर खड़ा हो जाता है, हम बेबस नजर आते हैं। डॉलर 30वीं सेंचुरी मुकम्मल कर रहा है, तेल की कीमतें 20वीं सेंचुरी की तरफ जा रही है, और आवाम, गरीब और मजलूम सिर्फ 75 सालों से बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, उनकी बैटिंग की बारी आज तक नहीं दे रही। आज अपनी जद्दोजहद की रफ्तार को बढ़ाकर ये तय करना है, ये फैसला करना है, ये तय करना है, ये फैसला करना है कि हम कराची और हैदराबाद और अगर मीर खास, नवाबशाह, सक्खर, ये 5 शहर ये तय करें, तो फिर इन शहरों का फैसला चाहे अगली पर हमें मरदमशुमारी में कम ही गिना जाए, लेकिन ये 5 शहर फैसला करें कि पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना है, तो पूरे मुल्क के बड़े जागीरदार सरमायादार कितना ही पाकिस्तान की बर्बादी को रोकने की कोशिश करें, इसकी तरक्की के रास्ते में रुकावट डालें। इंशाअल्लाह ताला ये 5 शहर और यहाँ पर रहने वाले, बसने वाले, हर ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी, हर इलाके के पाकिस्तानी अगर ये तय कर ले, तो खुदा की कसम फिर पाकिस्तान के बेहतर, रोशन और महफूज मुस्तक़बिल का सफर हम तय करेंगे। जैसे हमारे कौमी पॉलिसियां बनेंगे, हम अक्सरियत में हो ना हो, इंशाअल्लाह ताला नई क़यादत की अगर उभरेगी तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास के नौजवानों पर मुश्तमिल होगी। नया खून होगा, नए चेहरे होंगे, नौजवान होंगे। 35 साल से कम उम्र के लोगों को मैं दावत देता हूँ, तमाम सियासी जमातों, तंजीमों को, कि
आओ आओ अपने नौजवानों पर एतमाद करो, अपनी बहनों पर एतमाद करो, अपनी बेटियों बेटों पर एतमाद करो। ये जो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, ये टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल की फीमेल वर्जन है। ये टॉम क्रूज से कम नहीं है मेरी ये बहनें, मेरी बेटियां। ये हर तरह के नामुमकिन मिशन को मुमकिन बना सकती है। ये खड़ी हुई थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। तो ये पाकिस्तान आएगा, सिर्फ बेचारे टीम को तालियां बजा दी, वो हो जाती है। बाकी सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि फारूक भाई क्या बात कर रहे हैं। एक मेरी नाना बाजी ने उन्होंने तालियां बजाई और बाकी मेरी बहनें बेटियां उन्होंने तालियां बजाई। बाकी सारे मेरे साथियों को लग रहा था जैसे सांप सूख गया है हमें। और भाई यही बहनें बेटियां थी जिन्होंने बयान के बाद जो हमारे मामले अदालत कत्ल होने वाले जो साथी थे उनके जनाज़े को उठाया और दफनाया। इनका किरदार क़याम पाकिस्तान में, तामीर पाकिस्तान में, तरक्की पाकिस्तान में और एम की तहरीक में इस किरदार को हम मिलना नहीं कर सकते। हमें ये किरदार देना होगा। ये सारी लोग से खत्म हो जाएगी। गैस हो, बिजली हो, पानी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी, गैर आईनी कोटा सिस्टम, दाखिली ज़राअत की हल्के, दाखिली ज़राअत कौमी सूबा एसएससी के हल्के, इंशाअल्लाह ताला ये सब एक तरफ हो जाएंगे। कराची हैदराबाद के आवाम तमाम लसानी, तमाम मजहबी, मसलकी, तमाम सकाफती, तमाम सियासी वाबस्तगियों से भी बालागत होकर आइंदा इंतखाबात में, आइंदा तंजीमी नौ में ज्यादा से ज्यादा 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को किरदार दे, उन्हें आगे लाए। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये चौथा, ये आज 10वां शहर भी नहीं है। अभी भाई आप हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कहाँ गिनती में आता है हैदराबाद, जरा बताएं है? पहले वर्ष में हैदराबाद नहीं आता। अगर कराची हैदराबाद के आवाम ये तय करे कि कराची को भी उसका कौमी किरदार, उसकी अजमत बहाल करेंगे, लौटाएंगे और हैदराबाद को इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान का तेजी से तरक्की करने वाला चौथा बड़ा शहर बनाएंगे। तो 2 सालों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद पाकिस्तान का चौथे नंबर का शहर बन सकता है। बहनों, बेटियों, मेरे नौजवानों में इतना तपड़ है, इतना दम है कि ये पाकिस्तान को आगे ले जाए। ये अपने पैरों पे खड़े हों, कासाई गला, IMF से निपटे, वर्ल्ड बैंक से निपटे, एशियाई तरक्कियाती बैंक से निपटे, लेकिन जो हम टैक्स देते हैं 4,011 रुपए का, हमें 40 अरब की खैरात नहीं चाहिए। हमारा हक कम से कम 400 अरब रुपए है। कम से कम हमें हमारा हक मिलना चाहिए। 50 अरब से ज्यादा कम से कम सालाना शहर हैदराबाद को मिलना चाहिए। ये जगह जगह के पैकेज अब हमें नहीं चाहिए। अब ये फाइनल बात होगी और पीपल्स पार्टी के लिए भी ये आखिरी दवा है कि होश के नाखून लो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर और नवाबशाह शहर, कोटपुरी शहर, कंडोलाया शहर, इन शहरों की आबादी को जबरदस्ती कम करके तुम्हारी जिले की इंतजामिया, तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर, तुम्हारे डिप्टी कमिश्नर, सुपरवाइजर और तुम्हारे इनोवेटर जो टैबलेट पे हाथ तो चला रहे हैं, टैबलेट पे हाथ चला रहे हैं, लेकिन आपका और मेरा तरीका एंटर नहीं कर रहे। मुझे बता कि पूरा सिंध कराची हैदराबाद को छोड़ के 15% की रफ्तार से उसकी आबादी में इजाफा, घरों में इजाफा और सारा हमारा इजाफा 5% नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो सारा कबाइली इलाकों का पाकिस्तानी वहां से कहाँ गया? हैदराबाद और कराची। कहाँ गया भाई बताए ना?
FD घराना हम 4.5 अफराद हैदराबाद कराची में और बाकी सब जगह 6-6 7-7 अफराद और पेशावर और कोयटा में 10-10 12-12 अफराद। तो भाई हम भी सारी फैमिली प्लानिंग को एक तरफ रख देते हैं। अगर यही मुकाबला है, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा, ये मुल्क खुशहाली की तरफ कैसे जाएगा? उसी सूरत में जा सकता है कि जब इंसाफ हो, मसावत हो, बराबरी हो, सबको हक मिले, मर्द शुमार के दुरुस्त हो, सबको गिना जाए, एक शहर, एक घर, एक चुटकी, कोठी, कमरा, घर, फ्लैट, अपार्टमेंट, क्वार्टर, सबको गिना जाए, एक बेटे बेटी को गिनाया जाए, जो नॉन है उसे गिनाया जाए। किसी जगह शादी हुई है तो एडवांस में उसके बच्चों को भी दिमाग में भाई अल्लाह का वास्ता कुछ तो करें। इफ्तार है, रफ्तार है, और भी थोड़ी रफ्तार बढ़ाए, और भी थोड़ा अपनी आबादी को भी गिनाए अल्लाह के वास्ते यार। सारा ईमान का स्लाइस तो जमीन में किया हुआ है और बाकी पूरा मुल्क बेईमानों को छोड़ा हुआ है। भाई आबादी बढ़ाएंगे, आबादी से खाएंगे तो फिर सरमाया नहीं, ठीक है? अगर कम मिले जाएंगे तो कम नौकरी मिलेगी, कम नौकरी मिलेगी तो कम वसाइल मिलेंगे, कम वसाइल मिलेंगे तो फिर सब लड़ेंगे, ऐसा नहीं मसाल होगा, अलग इस्तेमाल होगा, फसादात होंगे, भाई से भाई को बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी को आखिरी वार्निंग होगा कि तुम्हारे जानने में जो भी पॉलिसी है कराची हैदराबाद के साथ ये मजाले उठा के बयान सुबह बर्बाद करके जाली मूवी साइड पे नौकरियां दे के हमारे बच्चों के असली मूवी साइड पे उन्हें नौकरियां ना देंगे। तुम जो जुल्म कर रहे हो मर्दमशुमारी में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हो, तारीखी धांधली। पहले 50% आबादी लापता थी, अब 66% आबादी लापता की है, 66% आबादी लापता इधर। तो ये तुम उस शाख को काट रहे हो जिस शाख पे तुम बैठे हो। अरे कम तो तुम्हारा रेवेन्यू कराची और हैदराबाद से आता है। यहाँ की चूड़ियाँ मेरी बहनें पहनती हैं, चूड़ियों की शरत है, पल्ला मछली है, रोपड़ी है, हैदराबाद मुंबई बेकरी का केक है, तो तुम्हारी शानें मेरी यहाँ से है। तुम जॉब करके चलते हो कलफ लगा के अपने कमी शलवार में, जिस तरह तुम अकड़ा कर चलते हो बेटा, ये सारी अकड़ कराची और हैदराबाद की दी हुई है। अल्लाह ताला की साथ के बाद, अल्लाह ताला की साथ के बाद इस सारी अकड़ हमारे तरफ से है। जिस दिन हमने फैसला कर लिया हमारा मतलब, जिस दिन हमने फैसला कर लिया हमारा मतलब हो गया, दास्तान करना होगी, दास्तान रेड लाइन नहीं, वसीम भाई और उसने जफर भाई, दोनों जफर भाई और वसीम भाई, रेड लाइन नहीं, अब टैग लाइन लेने की जरूरत है। अब रेड लाइन नहीं, ये सारी रेड लाइन हमारी रेड लाइन है। हम मुद्दे होने जाते हैं, मुनज़्ज़म होने जाते हैं। और तुम्हारा ये हाल है कि आज मेरे सारी बस्ती में अब्दुल्ला रहे, अपनी बस्ती में अब्दुल्ला का बेटा, आज मेरे सारी बस्ती में अब्दुल्ला रहे, अपनी बस्ती में। अब ये बंदे करें, अच्छा चले हमें लूट कर बेरोजगार करके महंगाई की चक्की में पिस कर गैस बिजली पानी से महरूम कर दे, हमारी इज्जत नफ्स को कचरों में लगा दे। अगर लाड़काना, काजू, कैफूर और सालन को तुमने बना दिया होता तो खुदा की कसम कहते बेचने को तुझे कोई काम किया। आज लाड़काना कहा देंगे, आज वही कहा देंगे, खड्डा कहा देंगे। पीपल्स पार्टी वालों होश के नाखून लो,
कराची हैदराबाद पर जुल्मों से बंद करो, नाइंसाफी बंद करो, असली साहिब पे हमारे बच्चों को रोजगार दो। अगर गैस सिर से मिलती है, पंजाब की सड़कों पर तो मिलती है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मुकदमा लड़ो, एनएससी में तुम्हें ज्यादा वसाइल चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। आबादी हमारी बढ़े, इनकम हमारे यहाँ हो, पूरे मुल्क से लोग कराची हैदराबाद में आए और उसके मजे तो मोड़ा। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। फिर हम भी इलाकाई सियासत कराए, हमने भी कही हमारा इलाका वो तुम्हारा इलाका, तो फिर और सिंध सबसे ज्यादा वसाइल फिर भी सबसे कम तरक्की से, सबसे कम तरक्की से। ये पीपल्स पार्टी वालों को आज बहुत उम्मीद है, चंद दिनों की, चंद हफ्तों की, जैसे ही रात की और हम कोई फैसला करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये फैसला हो गया। फिर सब हाथ पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा, और इंशाअल्लाह बंजारा तैयारी कर रहा है, लाट चलने वाला है और तुम्हारे सारे मसले अल्लाह इंशाअल्लाह ताला जमीन बोझ होगी, तुम्हारे अपने आप तुम्हारे कहलगामों को पकड़ेंगे, तुम्हारे अपने मेरे सिंधी मासूम बेगुनाह सिंधी शहरी, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, इंशाअल्लाह उनका हाथ बहुत जल्द तुम्हारे परिवारों पर होगा। 15 सालों से जो वन में ट्रैफिक चल रहा है, अब इसे खत्म होना चाहिए। 2 अशार पर खत्म करूंगा। एक, तुम साढ़े 10% वोट लेके बलिया चलाओगे, हम 90% वोटों के साथ बलिया से बाहर जाकर बलिया के फैसले भी इंशाअल्लाह हम बाहर जाकर इंशाअल्लाह शहर की तामीर और तरक्की के फैसले भी हम करेंगे। मैं सिर्फ एक क्षेत्र की इजाजत दे दूं कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, और वो वक्त आ रहा है। हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खरीद